Hello, students. Most welcome. Again, we will learn today another practical session, Standard 9 Computer Subject. Today, we will start another new practical topic. We will start today Microsoft Office Word practical topics. There are so many practical topics are there in Microsoft Office Word application software. Today we will learn some most important and essential and basic level and most important also category practical topics like there is a home tab, and in the home tab there is so many important formatting category tools and menu. It will useful to get formatting in your paragraph, to get cut copy paste effects like bold, italic, underline effects, strike through, subscript and superscript, and font face, font size, and like a format painter, etc. Like this is a font color, highlighter color, clear formatting, etc. Like increase and decrease, fonts grow and shrink, like. And there is a paragraph section. In this section there is bullets and numbering, the multi-level listing, and the ascending and the descending means sorting of numbers and characters, etc. Like this is a paragraph settings like line spacing, alignments. There is 4 levels of alignments: align left, align center, align right, and this is justify, borders and border settings, and there is a change style, find, replace, go to, and the selection options. There are so many options and tools and sub menus are there available in home tab. यहाँ पे होम टैब जो है वहाँ काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग के रिलेटेड, फॉर्मेटिंग मीन्स टेक्स्ट जो होती है जो हम टाइप करते हैं वर्ड के अंदर, वहाँ पे हम सिर्फ टाइप ही नहीं करते बल्कि टेक्स्ट टाइप करने के बाद उसकी साइज़ जो है बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उसमें कलर है ऐड करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, बोल्ड, इटालिक करते हैं, या फॉर्मेटिंग अगर कोई टेक्स्ट पे दी गई है उसी टाइप की सेम फॉर्मेटिंग दूसरी टेक्स्ट पे भी अप्लाई करनी है तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर है यहाँ पे टॉप साइड जो टूल दिया गया है, उसकी शॉर्टकट की भी है, यूजिंग थ्रू माउस भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर लाइन स्पेसिंग है, अलाइनमेंट्स 4 तरह की होती है, फिर ये लाइंस के रिलेटेड मीन्स बॉर्डर्स के रिलेटेड ऑप्शन है, हाईलाइट कलर है, शेडिंग कलर है, ये जो है और टेक्स्ट हाईलाइटर है, इस तरह का है, जैसे बुलेट एंड नंबरिंग है। देयर आर सो मेनी important menu and tools available there. So we will start and learn one by one in this important practical session of specially made for the Office Word, and the listed topics are we will learn today. So in today's lecture we will learn following most important practical topics of Microsoft Office Word. This package is made and it is developed by the company name is Microsoft. So the Word or Excel or a PowerPoint or Access category software or applications are developed by Microsoft company. And there is another package, one of the package is available. It is known as OpenOffice also. OpenOffice package contains writer, spreadsheet, presentation softwares, also same like as Word or Excel or PowerPoint. We can use it also. The main difference between Office package, Microsoft Office package, and the OpenOffice package is the Microsoft Office package are payable. They are payable. If we want to use this, then we need to purchase it. They are available with license and the limited time duration means limited expiry date with also, and then the OpenOffice package will comes open source
It means it is free and we can easily freely download using through its website at any time, at any condition. So this is a main difference between Microsoft package and the OpenOffice package. The Word category software available in that specific Office package, OpenOffice package, it is known as Writer package there. It means यहाँ पे जो वर्ड है वो वहाँ पे राइटर बोला जाता है अगर हम ओपन ऑफिस पैकेज यूज़ करते हैं तो. So we will start today's practical session of MS Word. Okay, our first there is a list of today's practical topics, and our first menu or tab is Home tab. There is a Home tab. This is called also a ribbon, Home ribbon, and this ribbon contains so many menus and sub-menus and tools and tasks, etc. There is a category also, like clipboard category contains cut, copy, paste and format painter. The font category section contains font related options. The paragraph category ribbon contains paragraph related options. This is style options. These are find, replace, go to. It is called editing option. Our first few options are the cut, copy, paste and format painter. And at this end of this lecture, there is a homework of today. In this homework, we need to write steps to perform cut, copy and paste, then how to perform cut, how to perform copy and paste, and also we need to type and to learn different category of font faces. These are the list of font faces, means font styles. If we select any kind of text and then you can move this your mouse pointer and then click it and it will apply on your text. Okay, so any 10 category of font faces you have to write in your fair book. And at the end of this page there is a solution of today's homework. This is the number 1, write steps to perform cut, copy and paste. These steps are based related to cut and paste, and these steps are related to copy and paste. और लास्ट में जो 10 फॉन्ट्स के नेम आपको लिखने हैं वो भी लिस्ट यहाँ पे बना के रखा है, तो वो भी आपको लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस lecture you will get in a few minutes, and then short while you will get this in your WhatsApp group. So now we start our today's task. Let's get started. So how to perform cut, copy and paste. To perform cut or a copy and then you have to paste, so select any term like this word or a paragraph or a line, then here we go. These tools cut and copy are at this time disabled, but when we select any term or a text or a line and look at here, it will appear. It is now enabled, and before we select it was disappeared like this type. If we click then it performs nothing. कट या कॉपी या पेस्ट के लिए कोई भी टेक्स्ट जो है या तो वर्ड्स जो है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. देन यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क लाइक अ कट और कॉपी और पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर ऑल्सो. ओके, नाउ वी start this like a cut. Press the cut button here or press Ctrl X. It will cut your text, selected text. Then what to do? Cut is useful to cut the actual text or a line from the source, like this is source, and used to paste it at another place, like here we need to paste it and place your cursor here. This is a new cursor place, and press Ctrl V from keyboard or click this paste. This is a paste tool. Click this and you will get this copy. Paste is useful for multiple times also.
This is very useful for a similar kind of word or a topic or a paragraph to create more and more copy also. And if we need to perform the undo, press Ctrl Z. This is the Ctrl Z. I'm pressing from the keyboard. Press Ctrl Z. Ctrl Z से जो लास्ट में हमने वर्क किया था वो एज इट इज़ हमको मिल जाएगा. एंड दिस इज़ द लास्ट परफॉर्म्ड टास्क. ये कट परफॉर्म हुआ. कॉपी करने के लिए क्या करना है, कोई भी टर्म जो है उसको सिलेक्ट करना है, टर्म या वर्ड या पूरी लाइन या पैराग्राफ जिसको भी हमें यूज़ करना है उसको सिलेक्ट कीजिए. जैसे कि मैं कॉपी अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ. प्रेस Ctrl C और दिस टूल वी कैन यूज़ ऑल्सो दिस. प्रेस दिस कॉपी. और कट में क्या हो रहा था कि लास्ट में जो सिलेक्टेड आइटम थी, मीन्स जो लाइन थी या वर्ड था, वो वहाँ से निकल रहा था, उसकी जगह से कट हो जा रहा था और हम उसको दूसरी जगह पे ले जाके पेस्ट कर सकते थे. और पेस्ट जो है वो भी मल्टीपल टाइम्स होता है. जैसे कॉपी भी जो है वो भी मल्टीपल टाइम्स हम कर सकते हैं. उसकी कोई लिमिट नहीं है. अनलिमिटेड टाइम जितनी बड़ी बार हमें उसको यूज़ करना है, पेस्ट बनाना है, मीन्स उसकी कॉपी जनरेट करनी है, पेस्टिंग करते जाना है, वो हम कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स. जैसे अभी मैंने ये कॉपी जो वर्ड है उसको कॉपी किया है, तो अभी मैं पेस्ट कर रहा हूँ. एंड नाउ आई एम able to paste it. Press Ctrl V again or paste this tool. Click on this paste tool. Okay, now it is pasting. ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू आगे इंक्रीज होती जाएगी. जितनी भी बार आप Ctrl V और पेस्ट जो है उसके ऊपर क्लिक करोगे या शॉर्टकट को यूज़ करोगे, प्रेस Ctrl Z टू रिपीट द प्रोसेस. Okay, it repeats the last process. Ctrl Z. It is also useful. Undo and redo. Redo comes also repeat the undo process. It means press Ctrl Y and you will get the last undo process. This is a last process and this repeats your undo. Okay, Ctrl Z and Ctrl Y both are most important. And next our topic is the Format Painter. What is Format Painter? This is a tool of Format Painter and the shortcut is Ctrl Shift and plus C. Then what it performs, Format Painter, यहाँ पे ये जो लाइन है उसके ऊपर बोल्ड इफेक्ट दी गई है और उसके फॉन्ट्स जो है वो कैम्ब्रिया इस तरह से सेट किए हुए हैं. उसकी साइज़ जो है वो 14 की है. अभी ये नीचे के जो भी टेक्स्ट या पैराग्राफ है उस पर सेम टू सेम ये फॉर्मेटिंग जो है, फॉर्मेटिंग मीन्स जो भी हमने टूल्स ऐड किए हैं टेक्स्ट के ऊपर, जैसे कि एक नॉर्मल टेक्स्ट थी उसके ऊपर हमने फ़ॉन्ट के फेस चेंज किए, फ़ॉन्ट्स की साइज़ चेंज की, बोल्ड या इटालिक या अंडरलाइन ऐड किया, या कलर जो है जैसे कि हम यहाँ पे कलर दे देते हैं उसको भी ऐड किया हमने. अभी ये सेम टू सेम पूरा जो फॉर्मेटिंग है, पूरा जो भी चेंजेस है, चेंजेस के साथ इंक्लूडिंग ये जो भी टेक्स्ट अभी है उसको हमें अप्लाई करना है. ये पूरी जो फॉर्मेटिंग है उसको दूसरी कोई टेक्स्ट पे अप्लाई करना है. तो सिर्फ कर्सर जो है वहाँ पे रखें, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन मूव ऑन योर टेक्स्ट एंड देन फिनिश. इट विल गेट कॉपी, इट विल क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ सिमिलर एज आवर प्रीवियस फॉर्मेटिंग. जो भी पहले का फॉर्मेटिंग था जहाँ पे हमने कर्सर रखा था, बस उसके ऊपर कर्सर रखना है, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करना है और दूसरी कोई भी टेक्स्ट जो है उसके ऊपर ऐसे माउस को मूव करना है. जैसे फिर से वर्क करते हैं, ये एक बार जो है परफॉर्म होगा, दूसरी बार फिर से आपको कर्सर रखना पड़ेगा. फिर से इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर का टूल जो है यहाँ पे क्लिपबोर्ड के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है और टेक्स्ट के ऊपर ऐसे सिलेक्ट करते जाना है और माउस की क्लिक जो है उसको होल्ड रखना है और छोड़ देना है लास्ट में. एंड इट डन्स. ये जो है आपके न्यू टेक्स्ट के ऊपर या नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा. इसके अंदर आपको बोल्ड की इफेक्ट मिली है, कलर की इफेक्ट मिली है, साइज़ की इफेक्ट मिली है, फॉन्ट फेस की इफेक्ट मिली है. Ctrl Z हम परफॉर्म कर रहे हैं. Ctrl Z जो है वो अंडू के लिए है और अंडू से क्या होगा, लास्ट की जो प्रोसेस थी, जो इफ़ेक्ट थी या सेटिंग्स था वो हमको फिर से मिल जाएगा. नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज़, ग्रो एंड श्रिंक फॉन्ट. फॉन्ट फेस अगर यूज़ करना है तो कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए
या तो पहले से ही कोई एक फ़ॉन्ट की फेस जो है, फेस वैल्यू मीन्स की स्टाइल, उसको आप यहाँ पे क्लिक करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट किया है कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट और 14 की साइज़ है। तो हर बार अगर नेक्स्ट में इंटर लगा के न्यू लाइन में कुछ टाइप कर रहा हूँ तो फ़ॉन्ट का फेस जो है, फ़ॉन्ट की स्टाइल जो है वो कैम्ब्रिया के रिलेटेड रहेगा। चेंज करने के लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो फेस है, there are so many different number of faces. We can also use to download it. There is so many millions of thousands and millions of different category style related fonts available on internet also, and they are free also. We can download it and installed easily on our machine, on our PC. There are so many fonts available in this PC also. So how to use it? Select this text and click on any kind of style, font style. You can also move, and then the result is available on the same there, which their font is, cursor is the specific line. जहाँ पे भी आपका कर्सर अगर पड़ा है वहीं पे, उसी लाइन पे, ये जहाँ भी आप माउस पॉइंटर को मूव कर रहे हैं उसके रिलेटेड, उसके मुताबिक जो भी यहाँ पे फ़ॉन्ट का फेस जो है वो अप्लाई हो रहा है। या तो लास्ट में आपने ये पूरी लाइन जो है अगर सिलेक्ट की हुई है, इसको ऐसे ही सिलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस में जाइए। इसको फ़ॉन्ट थीम भी बोला जा सकता है। और देन क्या करना है कि आपको सिर्फ माउस को मूव करते जाना है, या तो कीबोर्ड में से डाउन या अप एरो जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड डेमो जो है वो फ़ॉन्ट का फेस कैसे स्टाइल जो है जनरेट कर रहा है, वो फेस स्टाइल जो है वो आपको यहाँ पे एज ए डेमो आप देख सकते हो। जो सिलेक्टेड पहले था, जो भी टेक्स्ट था या पैराग्राफ था, वो उसके ऊपर वो चेंजेस जो है वो अप्लाई होता जाएगा। अगर कोई चेंज जो है वो अप्लाई हो गया है, जैसे कि ये अप्लाई हो गया, तो फिर से जो प्रीवियस सेटिंग था, प्रीवियस फ़ॉन्ट की स्टाइल थी, उसको आपको लेके आना है। तो कंट्रोल Z प्रेस कीजिए। कंट्रोल Z के रिलेटेड आपको लास्ट में जो भी सेटिंग्स था वो कंट्रोल Z जो है वो भी आप काफ़ी बार यूज़ कर सकते हो, लास्ट के प्रीवियस सभी सेटिंग्स को फिर से लाने के लिए और देखने के लिए। तो ये जो है वो फ़ॉन्ट फेस है, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो एकदम आसानी है, सिलेक्ट कीजिए कुछ भी। ये मोस्ट ऑफ जो मेनू जो है या तो टूल्स जो है जो यहाँ पे दिख रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ टाइप किया हुआ प्री प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है वो चाहिए। तो टाइप किया गया जो भी टेक्स्ट है या पैराग्राफ है उसके ऊपर ये सब आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कोई सिलेक्ट करने के बाद कुछ जो है वो सिलेक्ट होगा तो कट या कॉपी जो है वो एक्टिव होगा, क्योंकि सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है उसकी कॉपी होती है, और सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है या तो पैराग्राफ जो है उसको हम कट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। और कट और कॉपी परफॉर्म होने के बाद पेस्ट जो है वो होगा। अगर कुछ कट ही कॉपी नहीं किया है तो पेस्टिंग भी जो वो मेनू जो है या टूल है वो एक्टिवेट नहीं होगा। फॉर्मेट पेंटर जो है वो किसी भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जो है उसके ऊपर आपको क्लिक रखना है और देन फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करना है, और देन जो भी न्यू टेक्स्ट है उसके ऊपर उसको मूव करना है, सिलेक्शन करना है, एंड इट विल अप्लाइज दिस चेंजेस। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है? इसके लिए कोई भी टेक्स्ट जो है, जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, फॉर्मेटेड मीन्स जिसको फेस चेंज किया है, जिसकी साइज़ चेंज की हुई है, और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अगर दिया है, या तो नंबर न्यूमेरिक्स जो है वो भी दिया है, सीरियल नंबर्स के लिए बुलेट्स जिसको बोला जाता है, या तो कलर्स जो है वो हाइलाइटर कलर से कुछ भी दिया है, चेंजेस किया है सब कुछ, उसको सिलेक्ट कीजिए। और ये जो है क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पे है। ये टॉप साइड जो फ़ॉन्ट की साइज़ जो है जैसे 14 लिखा है, उसी लाइन में लास्ट ये जो है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन इट लीव्स ओनली प्लेन टेक्स्ट। इट रिमूव्स ऑल द फॉर्मेटिंग एंड ऑल द फॉर्मेटेड ऑप्शंस विच वी अप्लाई ऑन दिस टेक्स्ट। जो भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की थी पहले वो सब निकाल देगा, रिमूव कर देगा, और नॉर्मल टेक्स्ट की तरह उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये ऑप्शन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर
कोई कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट या लाइन पे ऐसी चीज़ जो है परफॉर्म करनी है, तो इसको सिलेक्ट करके एक एक ऑप्शन जो है वो आपको अंडू नहीं करना पड़ेगा, या तो ऑन जो है तो अगर ऑफ नहीं करना पड़ेगा, सीधे ही आप ये ऑप्शन जो है उसको प्रेस कीजिए और इट विल क्लियर्स ऑल द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। ओके, तो अभी हम अंडू कर देंगे इसको फिर से। अंडू की शॉर्टकट है Ctrl Z and it repeats the last. Then the next is text highlighter color and the font colors. Text highlighter के लिए कोई भी एक लाइन जो है या तो टेक्स्ट जो है या तो पैराग्राफ जो है इसको सिलेक्ट कीजिए, एंड देन ये जो पेंसिल जैसा दिख रहा है टूल, इट इज़ अ टेक्स्ट हाईलाइटर कलर, मेक अ टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज मार्क्ड। अगर किसी टेक्स्ट पे हमने कुछ मार्किंग की है, जैसे हाईलाइटर पेन से हम कुछ मार्किंग करते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, कोई स्पेसिफिक वर्ड है या कोई इम्पोर्टेंट टर्म है या कोई इम्पोर्टेंट जैसे कोई ब्लैंक है, कोई आंसर है, ऐसी चीज़ें जो होती है उसके ऊपर हम हाईलाइट करते हैं हाईलाइटर से। तो ये सेम हाईलाइटर का टूल है। इसके पास में ही जो डाउन एरो है उससे डिफरेंट कलर्स जो है वो डिस्प्ले होंगे। कोई भी कलर जो है उसके ऊपर ऐसे माउस को सिर्फ मूव करने से और उसके ऊपर जैसे कोई क्लिक करना है आपको, अगर अप्लाई करना है तो, जैसे कि ये ग्रे कलर हम रखते हैं, ये डार्क ग्रे है, इसके ऊपर हम ये ग्रे 50% है, कितने परसेंट और क्या कौन सा कलर है वो कलर के नेम जो है वो भी यहाँ पे सजेशन बॉक्स में नीचे टूल टिप की तरह आ रहे हैं। इट इज़ नोन एज टूल टिप, लाइक दिस कलर नेम इज अपीयर्स एंड ओनली यू कैन नीड टू क्लिक इट एंड दिस विल अप्लाई ऑन द सिलेक्टेड आइटम। तो ये जो है वो सिलेक्टेड ओनली द टेक्स्ट जो है उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। और ये हाइलाइटर है, उससे रिलेटेड एक दूसरा कलर जो है यहाँ पे आगे इसी लाइन में वो जो है वो है थीम कलर। ये थीम जो है पूरी लाइन जो है इसके ऊपर अप्लाई होगी, जैसे कि ये नेक्स्ट लाइन मैंने अभी सिलेक्ट की है। तो ये थीम कलर जो है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे कलर है, बट ये देखिए आप ये जो है कलर, ये पूरी लाइन का जो क्राइटेरिया जो एरिया है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ये पूरी क्राइटेरिया जो है उसको कवर कर रहा है। पूरी लाइन में वो बैकग्राउंड में कलर जो है वो ऐड करेगा। तो ये थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है कि हाइलाइटर कलर जो है वो सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है, और ये शेडिंग है कलर्स द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और अ पैराग्राफ, उसके पूरे बैकग्राउंड में उसको कलर जो है वो अप्लाई करेगा, और ये जो है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई करेगा। Ctrl Z प्रेस करेंगे, undo will comes, it will definitely gives you the last option, the last effect like this, the normal text। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग हमने यूज़ की। उसके बाद टेक्स्ट हाइलाइटर जो है नीचे से अभी यूज़ किया यहाँ से। अगर कोई कलर आपको नहीं चाहिए तो नो कलर आप दे सकते हैं। अगर अप्लाई करने के बाद कोई कलर आपको ऐड नहीं करना है तो आप नो कलर जो है वो भी दे सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर जो है उसके लिए कोई भी फ़ॉन्ट है या टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए, पास में ही जो अभी एरो आप देख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए, इट गिव्स मच मोर कलर्स देयर, एंड लास्ट में मोर कलर्स भी है, उससे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आप कस्टम कलर या स्टैंडर्ड कलर ऑप्शंस जो है उसको मूव करके सिलेक्ट करके बना के, जैसे ब्लैक कलर जो है उसमें भी लाइट और ग्रीन शेडिंग है, और there is so many options of colors are available। Select it and press OK, then it will apply on the text and this is a custom color। इसके लिए आपको माउस जो है उसके ऊपर मूव करना पड़ेगा, and this is a light and dark option and OK, then press OK। OK, I am cancelling this। The next option is change case। अगर इस करंट लेक्चर में अभी सभी जो भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसको क्लियर करना है, कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है सभी इम्पोर्टेंट है, बट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। चेंज केस जो है वो हम देखेंगे। चेंज केस के लिए यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट या लाइन को सिलेक्ट कीजिए। देयर आर सो मेनी केस ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये हाइलाइटर जो है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर एंड फॉन्ट कलर,
उसके पास में ही लेफ्ट साइड यहाँ पे चेंज केस है। इट चेंज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट to uppercase, lowercase or other common capitalized options. Like this, there is a 3 and to 5 options there. This is a sentence case. Okay, this is a sentence case. सेंटेंस केस के रिलेटेड आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि ये वर्ड जो है वो पूरा जो बिगिन हुआ है तो उसमें लाइन या पैराग्राफ का फर्स्ट ओनली कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है, उसको सेंटेंस केस बोलेंगे। लोअर केस में कुछ भी कैपिटल नहीं है, अपर केस में सभी जो भी कैरेक्टर सिलेक्टेड है या लाइन सिलेक्टेड है या पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज या पूरा डॉक्यूमेंट, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट पेज है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है सभी कुछ अपर केस में हो जाएगा, मीन्स वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैपिटल हो गया, इजीली ये कन्वर्ट हो गया कैपिटल में। अभी इसको क्लिक करेंगे लोअर केस में, कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए। देन इट चेंजेस इनटू लोअर केस। दिस इज अ सेंटेंस केस। सेंटेंस केस के लिए पूरा पैराग्राफ जो है उसको आपको टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद वो जो अप्लाई होगा, अदरवाइज दिस विल नथिंग डू। एंड दिस इज अ कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके लिए कम से कम 2 वर्ड जो है वो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है फर्स्ट कैरेक्टर वो टर्न हो जाएगा कैपिटल में। जैसे चेंज और केस 2 है, सभी का दोनों का पहला फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो गया, तो इट इज़ नॉन एज कैपिटल ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड। एंड दिस इज अ टॉगल। ये जनरली कभी भी यूज़ नहीं होता, कहीं पे अगर ऐसे रिलेटेड इस टाइप डिज़ाइन के रिलेटेड कोई वर्ड्स अगर है और अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट देयर इज़ एन ऑप्शन टू अप्लाई दिस। क्लिक ऑन एंड दिस विल gives you this kind of design. This is a very weird design. चेंज केस में पहला फर्स्ट कैरेक्टर जो है दोनों में वो स्मॉल है, बाकी के कैपिटल है, तो ये इस तरह का तो कोई जो है वो डॉक्यूमेंट बनाता नहीं है, बट देयर इज़ एन ऑप्शन, सो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रेस Ctrl Z एंड इट विल गिव यू द नॉर्मल चेंजेस। पहले से जिस तरह से था वो अभी हो गया। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। सबस्क्रिप्ट जो है उसके एग्जांपल के रिलेटेड, ये जब हम कोई इक्वेशन बनाते हैं, जैसे कि ये केमिस्ट्री के रिलेटेड एक जो है वो इक्वेशन है जो H2O बोलते हैं हम, जिसमें 2 जो है उसकी पोजीशन नीचे की ओर होती है, H और O दोनों नॉर्मल होता है और 2 जो है वो थोड़ा डाउन साइड नीचे की तरफ होता है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे दोनों टूल्स जो है अवेलेबल है, द सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज अ सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट दी गई है, कंट्रोल के साथ इक्वल टू का प्रेस कीजिए। और सुपरस्क्रिप्ट, सुपर रिलेटेड जो इफेक्ट है आपको याद कैसे रखना है कि सुपरस्क्रिप्ट मीन्स जो इफेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो सुपर मीन्स ऊपर। क्रिएट स्मॉल लेटर अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड सब जो है वो नीचे है। क्रिएट स्मॉल लेटर्स बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन, जो टेक्स्ट की बेस लाइन है उससे भी बिलो वो उसको पहुंचाएगा जो सबस्क्रिप्ट जो है। तो इट इज़ इजी टू रिमेंबर दिस दैट के आपको याद रखना है जो सुपर है वो ऊपर है। जैसे कि ये अभी H2O में जो 2 है उसको नीचे ले जाना है, तो हमें क्लिक करना है सब के ऊपर। सब मीन्स नीचे की तरफ, ये हो गया नीचे, तो अभी ये बन गया पूरा H2O। और सुपरस्क्रिप्ट के लिए एग्जांपल है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं फर्स्ट, और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी ये वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी सेट है कि जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे टाइप करेंगे, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये NDST, ये 3RD, ये ऑटोमेटिक स्पेस छोड़ने के बाद ये कैरेक्टर्स ऊपर मीन्स बेस लाइन से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, तो ये इफेक्ट जो है उसको सुपरस्क्रिप्ट बोली जाती है। तो कोई कैरेक्टर अभी मैन्युअली अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करके भी ऊपर जो है बेस लाइन से ऊपर वो रख सकते हैं। जैसे कि ये सुपरस्क्रिप्ट का जो वर्ड है उसका लास्ट कैरेक्टर जो है T, उसको मैंने सिलेक्ट किया है
और यहाँ पे ये टूल है, उसके ऊपर बस क्लिक कर देना है तो ये बेस लाइन से ऊपर की तरफ चला जाएगा। और कंट्रोल Z प्रेस कीजिए, या तो फिर से वही टी जो है उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर से ऊपर क्लिक कीजिए। ये यहाँ पे जो आप टूल देख रहे हैं वो अभी थोड़ा ऑरेंज कलर का दिख रहा है, तो ये शो कर रहा है कि ये अभी सिलेक्टेड है और इसकी जो इफ़ेक्ट है वो ऑन है। तो फिर से क्लिक करने के बाद ये इफ़ेक्ट जो है वो ऑफ हो जाएगी, टेक्स्ट जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो नीचे की तरफ जो इफ़ेक्ट है उसको सब स्क्रिप्ट बोलेंगे, ऊपर की तरफ जो इफ़ेक्ट है बेस लाइन से ऊपर की तरफ उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो खास आपको याद रखना है, और किसको सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे और किसको सब स्क्रिप्ट बोलेंगे वो भी याद रखना है, क्योंकि ये एज ए क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के रिलेटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट टाइम पे है। इसलिए कोई भी एक ऑप्शन जो है एग्जाम्पल है आपको नीचे दिया गया होगा और आपको उसको सर्च करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन एग्जाम्पल जो है वो सब का है या सुपर स्क्रिप्ट का है। इसको डिलीट लगेंगे। एंड नाउ वी कैन यूज bold, italic, underline. It is so easy. Select this text, normal text, and click on B tool, or press Ctrl B. B is a shortcut, Ctrl B. Then select italic, press on I. Select your any kind of, कोई भी आप वर्ड जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर डेमो है। इसके ऊपर U के ऊपर क्लिक कीजिए और U के पास में यहाँ पे एक एरो है। तो एरो जो है वो इसलिए है कि वहाँ पे देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरलाइंस जो है वहाँ पे काफ़ी सारी है। और अंडरलाइन के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन कलर भी है, उसको कलरफुल लाइन अंडरलाइन भी आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया रेड, तो कोई अगर कैरेक्टर जो है उसको अंडरलाइन तो करना है, तो अंडरलाइन मोस्टली यहाँ पे ब्लैक आ रही है, उसको आपको कलरफुल देना है, कलरफुल बनाना है। तो कलर का ऑप्शन भी वो नीचे आ रहा है। तो ये जो पूरा अभी ये मेनू आपको दिख रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो ये जो टूल है U, उसके पास में जो डाउन एरो है वो वहाँ से उसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे एक जो है ड्रॉप डाउन मेनू पूरा खुलेगा। इट कंटेन्स सो मेनी डिफरेंट काइंड स्टाइल्स ऑफ अंडरलाइन एंड देयर इज अंडरलाइन कलर एंड यू कैन सिलेक्ट इट एंड देन ओनली मूव योर माउस if you need to apply and then click and it gives you a colored underline. ओके, ये अंडरलाइन आ गई। स्ट्राइक थ्रू जो है उसके लिए आपको कोई ऐसा एग्जांपल है जैसे सिलेक्ट योर जेंडर, तो देयर इज अ टू ऑप्शंस if there is available like male and female, then select any one and strike any one. To select means if you want to strike out any, then select it and press on strike through and it will strike. So it is very useful to give or to select your option or your answer also, and others are striked out, then use this strike out option. It is draw a line through the middle of the selected text, and now press Ctrl Z again. This will give you last all normal text. Okay, if you need Ctrl Y, then there is a unwanted text, so press Ctrl Y and then it gives you undo. The undo process, last process of undo is the blank, and blank is blank will give you the style. And what is the next? There is a bullets and numbering. The bullets are one kind of a symbol comes before the serial number or a text. If you have, there is a step to 1 2 3 for serial numbers, and this is all serial numbers. I am using this in a new line, in a new page to understand regular this. Okay, press Ctrl L to get L, left alignment. Okay, I am now doing, these are the bullets. Okay, I am just moving my mouse on these options and the demo bullet or a symbol comes near
below blank page. You can select this specific bullet and then type anything like ASD and then press enter, and it will generate the auto bullet. Bullets and numbering are most important to generate auto bullet or auto numbering. This is a bullet. Start a bulleted list. Click the arrow to choose different bullet styles. और इसमें भी आपको क्या करना है, नंबरिंग में वो नंबर लिस्ट स्टार्ट करेगा। इसके पास में, ये दोनों के पास में एक डाउन एरो है, तो वहाँ से आप नंबर्स की कैटेगरी जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम सीरियल नंबर जो है उसमें सिर्फ 1 2 3 ही नहीं, बल्कि रोमन नंबर्स जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। रोमन में भी 2 कैटेगरी है, कैपिटल रोमन एंड स्मॉल रोमन। और अल्फ़ाबेट्स की तरह भी हम लिस्टिंग जो है बना सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। अल्फ़ाबेट्स में भी कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होती है। अगर सीरियल नंबर नहीं देना है, अल्फ़ाबेट नहीं देनी है या रोमन नंबर्स नहीं देना है, तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बुलेट्स। बुलेट्स के लिए आपको क्या करना है, पास में ही वो जो टूल जो है उसके पास में जो डाउन एरो है, कोई भी उसमें से बुलेट जो है उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर उसको बाद में चेंज भी करना है तो सिर्फ दूसरी बुलेट जो है उसके ऊपर माउस को मूव करते रहिए, एंड देन इफ़ यू want to change this, then select it, then click it, and it changes the entire the paragraph or a list of text। तो यहाँ से आप पूरा लिस्ट जो है उसको बुलेट्स, या तो आप नंबर्स भी दे सकते हैं, तो उसके लिए उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हम दूसरा कुछ दे रहे हैं, जैसे कि ये है 1, देन एंटर प्रेस करते जाइए। नंबर 2 प्रेस एंटर, नंबर 3 प्रेस एंटर। और कुछ अगर टेक्स्ट देनी है तो भी दे सकते हैं, तो वो भी आप जो है आसानी से ऐड कर सकते हैं। लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिक बनती जाएगी, और लिस्ट से बिफोर पहले अगर सीरियल नंबर है तो वो भी अप्लाई होंगे, अगर बुलेट्स हैं तो वो भी ऑटोमेटिक जनरेट जो है लिस्ट के आगे हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये बुलेट्स जो है उसको हटाकर नंबर्स यहाँ पे सेट करना है, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ नंबरिंग ऑप्शन। यहाँ से जो पास में एरो जो है डाउन एरो उसके ऊपर क्लिक करना है, एंड सिर्फ आपको माउस मूव ही करना है। अगर कुछ टाइप नहीं भी किया है, अगर आपने वो निकाल भी दिया है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ये रोमन फिगर्स जो है उसको रख देता हूँ, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो डेटा जो भी है, कंटेंट जो भी है वो रिमूव हो गया है, बट सीरियल नंबर जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके रिलेटेड सामने जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा है, जैसे कि यहाँ पे हम सीरियल नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे कि कुछ स्टेट के नेम है, गुजरात है, प्रेस डाउन एरो एंड देन काफ़ी सारे, जैसे कि कोई दूसरे, ये जस्ट एग्जांपल के लिए। ऐसे कंटिन्यू आप कोई भी जो टर्म्स है या तो वर्ड्स जो है वो आप टाइप कर सकते हो, और उसके पहले के जो भी सीरियल नंबर्स है, बुलेट्स है, वो एज इट इज़ रहेंगे। जैसे कि फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, और नाउ आई एम वांट टू गिव बुलेट, एंड जस्ट आपको माउस को इसके ऊपर मूव करना है, और जो भी आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर सिर्फ क्लिक कर देना है, एंड देन डन। वो जो है पूरा लिस्ट जो है एज इट इज़ रहेगा, और उसके बिफोर की जो बुलेट्स थी या तो नंबर्स थे वो चेंज हो जाएगी। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे तो सब निकल जाएगा। एंड नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट ऑप्शन। ये बुलेट्स, डिफाइन बुलेट स्टाइल और नंबरिंग दोनों हमने देख लिए। सोल्ट जो है, सोल्टिंग मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग, वो बोथ नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों के ऊपर हो सकता है। इसके लिए आपको 1 बाय 1 एक लाइन में एक जो नंबर्स या तो कैरेक्टर्स जो है उसको टाइप करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1, ये प्रेस एंटर, 2 एंटर, 4 5 6 7 यहाँ पे रखते हैं ऐसे। इसको आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे पहले प्रायोरिटी क्या है
कि एक लाइन में एक नंबर जो है वो होना चाहिए। ऐसे हॉरिजॉन्टल अगर रखेंगे तो वो उसको असेंडिंग A to Z ऑर्डर में या तो 1 to 10 या 10 to 1 में वो डिवाइड नहीं करेगा, वो सॉल्टिंग नहीं करेगा। तो सॉल्टिंग के लिए क्या करना है, यहाँ पे A-Z ये एक टूल जो है अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल टेक्स्ट जो है उसको सॉल्ट करेगा, डेटा जो है उसको सॉल्ट करेगा। सॉल्ट मीन्स A to Z और Z to ऐड। A to Z मीन्स यहाँ पे असेंडिंग और असेंडिंग मीन्स यहाँ पे 1 to 10। डिसेंडिंग मीन्स 10 to 1 और 10 जो है ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 तक है तो 7 जो है वो ऊपर आ जाएगा। जैसे कि हम प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल रहा है और ये जो सिलेक्टेड है वो पैराग्राफ की तरह इसको देख रहा है और ये नंबर्स है तो यहाँ पे नंबर ही दिख रहा है। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लेना है, डेट टाइम है तो डेट टाइम ले सकते हैं और ये असेंडिंग तो है उसको डिसेंडिंग सिलेक्ट कीजिए एंड देन प्रेस ओके। एंड ये देख सकते हैं आप, डिसेंडिंग है तो जो बड़ा नंबर जो है तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो टॉप साइड आ गया और जो स्मॉलेस्ट था नंबर वो डाउन साइड आ गया है। तो डाउन जो है वो नीचे है, 1 जो है वो नीचे है, तो ये जो है वो डिसेंडिंग हो गया। डिसेंडिंग में बड़ा नंबर या आगे की जो भी कैरेक्टर्स वैल्यू है, जैसे कि हम यहाँ पे ये प्रेस कर रहे हैं A B C D and E और F whatever, okay, also select this and press this A Z और ये जो है वो क्या है, ऑटोमेटिक जो है वो कलेक्ट कर रहा है ऑप्शन। ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट जो है वो आ गया यहाँ पे। एंड नाउ वी नीड टू यूज़ असेंडिंग। असेंडिंग तो है, अभी डिसेंडिंग कर लेते हैं। अगर उल्टा है F पहले होता तो इसको हम असेंडिंग में बदल दें। अभी प्रेस ओके कीजिए और ये डन। और जो लास्ट वैल्यू थी वो ऊपर आ गया। तो इसके लिए आपको 1 by 1 एक एक लाइन में टाइप किए गए कैरेक्टर्स जो है वो रिक्वायर होगी, उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से डायलॉग बॉक्स जो है बाहर आएगा तो उसको आप उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। वैल्यू मीन्स के आपको रेडियो बटन जो है, ये जो राउंड बटन, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको टेक्स्ट जो है या नंबर्स जो है वो असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो अलाइनमेंट के लिए है। जैसे यही जो है पूरी लाइन, इसको आप लेफ़्ट साइड, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही है अभी। सेंटर मीन्स ये पूरा पेज जो है उसके अंदर, उसके बीच में। ये राइट मीन्स जो अभी टाइप करेंगे वो आप जो भी, जैसे फिर फॉर एग्जांपल यहाँ से आप टाइप करेंगे वो पूरा राइट टू लेफ़्ट जो है वो मूव हो रहा है। मीन्स न्यू लाइन जो है या तो कैरेक्टर्स जो है वो पूरा राइट से शुरू होगा और लेफ़्ट साइड जो है वो लाइन जो है मूव होगी। प्रेस Ctrl Z, ये नॉर्मल हो गया। तो ये जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट हम बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट अलाइनमेंट जो है लाइन होती है। मीन्स कुछ भी टाइप करेंगे अगर तो कर्सर मेरा अगर यहाँ पे है तो वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इट मूव्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। बट हम अगर इसको राइट साइड ले जाते हैं और देन प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं कुछ भी, देन व्हाट विल हैपन, इट गिव्स यू द अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट मूवमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये पूरा उल्टा हो रहा है। अभी Ctrl Z दे देते हैं, प्रेस Ctrl Z undo and it gives you a normal settings as before। ओके, ये हम यहाँ पे आ गए। जस्टिफाई के लिए एक पूरा पैराग्राफ जो है वो आपको एज इट इज़ जो है मिनिमम 3 या 4 लाइन का उसके लिए टाइप करना पड़ेगा। देन इट गिव्स व्हाट, ये पूरा पैराग्राफ, जैसे कि ये दोनों लाइन है इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट है और जस्टिफाई अलाइनमेंट ये है। जस्टिफिकेशन, अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स एंड एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड नेसेसरी स्पेसिस ऑल्सो। एंड वो जो है वो क्रिएट करेगा दोनों साइड से पैरेलल समांतर स्पेस जो है उसको मेंटेन करेगा। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पैरेलल जो है हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर इफेक्ट के लिए इसके लिए आपको एक पूरा पैराग्राफ जो है वो टाइप करना पड़ेगा विदाउट एनी एंटर। कंटिन्यू आपको 3 या 4 लाइन टाइप करनी पड़ेगी। देन एट द एंड यू कैन सिलेक्ट एंड देन प्रेस दिस जस्टिफाई
tool, and in the option in the last the result you will get the effect of justification. इसके बाद लाइन स्पेसिंग है। जैसे मैंने ये सभी लाइंस जो है अभी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये सभी लाइंस जो है उसमें ये लाइन स्पेसिंग है, उसमें अभी सेट किया हुआ है 1.5 लाइन्स स्पेस, मीन्स एक जो है लाइन, उसके बाद 1.5 लाइन की स्पेस जो है वो ऐसे ही रखी है, वो ब्लैंक लाइन है, वो ब्लैंक स्पेस है। उसके बाद की जो लाइन होगी शुरू, न्यू लाइन, वो 1.5 लाइन से बाद की लाइन में शुरू होगी। अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 दे देता हूँ। तो ईच एंड एवरी लाइन अरेंज्ड इन 1 लाइन स्पेसिंग, मीन्स एक और दूसरी और तीसरी लाइन, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन है उसके बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ ये ऑप्शन 1.15 स्पेसिंग, तो बीच में ये ब्लैंक स्पेस जो है वो ऐड हो जाती है। जैसे ही आप यहाँ से नंबर्स जो है उसको बढ़ाते हैं, ये 1.5 स्पेसिंग है, तो बीच की स्पेस जो है बिटवीन स्पेस बिटवीन लाइंस वो इंक्रीज हो रही है। जैसे कि 2 लाइन, तो हर जो लाइन 2 लाइन है उसके बीच में एक्स्ट्रा 2 लाइंस जो है वो ब्लैंक रहेगी। तो इस तरह से अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारा कंटेंट का बहुत ही छोटा है, पूरे पेज में 8 से 10 लाइन ही है, और 8 से 10 लाइन टाइप करी हमने अगर कंप्लीट कर दी है तो वो ऊपर की साइड ही दिख रही है, नीचे का पूरा पेज, आधा पेज जो है वो ब्लैंक जा रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए, साइज़ जो है वो ज़्यादा दिखाने के लिए आप उसके बीच की जो स्पेसिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। ये Ctrl+Z प्रेस करेंगे एंड इट गिव्स यू द नॉर्मल इफेक्ट, द नॉर्मल सेटिंग्स एज बिफोर यू हैव। एट लास्ट हम यूज़ करेंगे बॉर्डर्स, शेडिंग कलर एंड फाइंड रिप्लेस गो टू। बॉर्डर्स के लिए कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे बॉर्डर है और यहाँ पे मोस्टली ये जो है वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स दे देते हैं। सिलेक्टेड जो भी है टेक्स्ट उसके अराउंड बॉर्डर जो है वो ऐड होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे ये जो ऐड किया है, ये पूरी बॉर्डर जो है वो ऐड हो गई है अराउंड द टेक्स्ट। वैसे ये जो है बॉर्डर पूरी ऐड हो गई है अराउंड द टेक्स्ट। Ctrl+Z जो है उसको निकाल देगा। फिर से दूसरा कुछ जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि ये ओनली लेफ़्ट साइड बॉर्डर जो है, उसके लिए आपको ये जो पूरा है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये उसको अप्लाई करेगा लेफ़्ट साइड या राइट साइड। यहाँ पे नो बॉर्डर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे बॉर्डर जो है पूरी अनअप्लाई हो जाएगी। ये राइट साइड जो है वो राइट साइड की बॉर्डर उसको निकाल देगा। तो इस तरह से दूसरे ऑप्शंस जो है वो भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से जैसे कि बॉटम बॉर्डर है तो यहाँ से बॉटम की एक बॉर्डर जो है वो भी जनरेट हो गई है। यहाँ से पहले हम नो बॉर्डर दे देते हैं और इसके ऊपर भी ये जो सिलेक्टेड बॉर्डर जो है अभी वो भी नो बॉर्डर की तरह सेट कर देते हैं। यहाँ पे नो बॉर्डर एंड इट रिमूव्स ऑल द बॉर्डर्स। उसके बाद आप सिलेक्टेड जो भी क्राइटेरिया है उसके ऊपर आप बॉर्डर जो ऐड कर सकते हो। शेडिंग कलर्स जो है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है। शेडिंग कलर्स के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर टॉप साइड इन द पैराग्राफ सेक्शन देयर इज अ शेडिंग कलर ऑप्शन। शेडिंग कलर्स गिव्स द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है, सबसे पहले सिलेक्टेड टेक्स्ट चाहिए, उसके बैकग्राउंड में और पैराग्राफ अगर सिलेक्ट किया है तो उसके बैकग्राउंड में कलर जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप डेमो देख सकते हैं। ये अभी एक ही टेक्स्ट, एक ही सिंगल टेक्स्ट जो है या वर्ड जो है अभी सिलेक्ट किया है तो उसके बैकग्राउंड में कलर ऐड हो रहा है। ये एक तरह का हाइलाइटर भी है, बट ये पूरा पैराग्राफ जो है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कलर के डिफरेंट शेड्स जो है उसके नाम जो है वो भी आप देख सकते हो। फाइंड रिप्लेस गो टू हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए प्रेस Ctrl+F और यहाँ पे ऊपर राइट साइड जो टूल है फाइंड, वहाँ पे क्लिक कीजिए
फाइंड में कुछ भी वर्ड आपको लिखना है, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ बोल्ड, BOLD। तो जहाँ पे भी बोल्ड वर्ड है पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर, पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी BOLD वर्ड है, अभी टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। तो जहाँ पे भी बोल्ड है वहाँ पे कर्सर आके रुक जाएगा, और अगर आगे नहीं है ये वर्ड, रिपीट नहीं हो रहा है दूसरी बार, तो ये मैसेज आ रहा है कि वर्ड हैज़ फिनिश्ड द सर्चिंग डॉक्यूमेंट। आगे कुछ ऐसा नहीं है। तो इससे एडवांटेज ये है कि कोई आप वर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार ये आ रहा है। फिर रिप्लेस जो है वो क्या करेगा कि एक वर्ड जो है उसको फाइंड करेगा और उसकी जगह पे कुछ दूसरा जो है वो ऐड करेगा। जैसे कि बोल्ड की जगह पे हम ऐड करेंगे इफेक्ट, जहाँ पे भी बोल्ड वर्ड जो है वो निकल जाएगा और उसकी जगह पे इफेक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। इट रिमूव्स द बोल्ड एंड इट ट्रांसफर रिप्लेसेस द इफेक्ट वर्ड, एंड प्रेस रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, और वर्ड इज फिनिश्ड एंड देन ये क्लोज करेंगे। और यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे बोल्ड इटालिक अंडरलाइन था और ये हो गया इफेक्ट इटालिक अंडरलाइन, मीन्स बोल्ड की जगह पे इफेक्ट वर्ड जो है आ गया। तो रिप्लेस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर 10 बार या 100 बार ये ऑप्शन जो है, जैसे कि ये वर्ड जो है बोल्ड या कुछ भी दूसरा अगर आ रहा है, अगर आपने कोई एक वर्ड जो है वो बार बार आपने टाइप किया है और पीछे से अगर वही चेंजेस है, करेक्शन है कि वह वर्ड जो है वो निकाल के दूसरा वर्ड ऐड करना है, तो हर बार आपको एक एक लाइन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, बैक स्पेस या डिलीट को यूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। काफ़ी सारी जो है वो प्रोसीजर्स जो है बढ़ जाएगी। तो वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिप्लेस को यूज़ करना है। और उसके लिए शॉर्टकट जो है वो Ctrl+H है, या तो उसको टूल जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। होम टैब में जाके 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। पहला जो ऑप्शन है फाइंड वर्ड, उसमें टाइप करना है जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है, क्योंकि फाइंड करने के बाद ही उसको रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे वर्ड के साथ। एंड देन यू हैव टू टाइप द वर्ड दैट यू वांट टू चेंज और रिप्लेस ऑन द दैट वर्ड। जो दूसरा वर्ड जो है वो आपको टाइप करना है यहाँ पे, ऐसा वर्ड जो पहले के जो पुराना वर्ड था उसके ऊपर आपको और राइट कराना है या तो रिप्लेस करना है। एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल एंड देन द रिजल्ट विल कम। सो यहाँ पे Ctrl+Z लगाएंगे हम, और गो टू जो है वो जो भी पेज, नंबर ऑफ पेज जो है वो उसके ऊपर आपको कर्सर के साथ मूव कराने के लिए, जल्दी से जल्दी फास्टेस्ट आपको पहुंचाने के लिए यूज़ होगा। इसके लिए शॉर्टकट जो है Ctrl+G है, और यहाँ पे एंटर पेज नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम देंगे 2 एंड प्रेस एंटर एंड यू जम्प्ड ऑन पेज नंबर 2। अगर 2 है तो 2 आप भी दे सकते हो। जितने नंबर ऑफ पेजेस आपने जनरेट किए हैं वहाँ तक आप जो है वो आसानी से जा सकते हो। अगर आपने 50 पेज का या 100 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है और आसानी से अल्टरनेटिव पेजेस में, जैसे कि फर्स्ट 1 पेज एंड देन यू नीड टू जंप ऑन 25 and then you need to go on 52 number of page, then you have to compulsory need to use these go to option. This like I'm using page number 1 and press on go to, then your cursor moves on page number 1. It is very easy and fastest option to move between pages. सिलेक्ट का ये ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक करने से सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल रहा है, उससे पूरा डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट ऑल होगा। पूरा डॉक्यूमेंट मीन्स अगर डॉक्यूमेंट में 3 पेज है या 30 पेज है और 50 और 100 पेजेस, सभी कुछ जो सिलेक्ट होगा। सभी कुछ सिलेक्ट करने के बाद वो आप सभी के ऊपर कोई भी टेक्स्ट की इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सभी के ऊपर आपको अलाइनमेंट चेंज करना है, सभी के ऊपर आपको बोल्ड या इटैलिक करना है, या तो कलर जो है वो ऐड करना है, या तो उसको डिलीट भी करना है। और एक दूसरा ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो
जो सिमिलर फॉर्मेटिंग जो है, सिमिलर फॉर्मेटिंग मीन्स ऐसे टेक्स्ट या तो नंबर्स जो सभी एक ही साइज़ की है, एक ही फॉन्ट फेज है, एक ही फॉन्ट स्टाइल है, और उसके ऊपर के फॉर्मेटिंग जैसे कि बोल्ड या इटैलिक अंडरलाइन, वो सभी कुछ एक ही तरह के है। वो ऑटोमेटिक एक ऐसा पैराग्राफ या हेडिंग उसको सिलेक्ट करेगी, तो जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग कंटेन करती है। ये पूरा सभी ऑप्शन जो है वो आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास सिस्टम है, डेस्कटॉप या लैपटॉप है। और आज के होमवर्क में जो है वो आपको लिखना है स्टेप्स टू परफॉर्म कट एंड कॉपी एंड पेस्ट, और कोई भी 10 फॉन्ट के नेम्स ये जो है नीचे मैंने रेडी करके रखे हैं। दोनों स्टेप्स है कट एंड पेस्ट, क्योंकि पेस्ट जो है वो जनरली उसको यूज़ करना ही पड़ेगा, कट करने के बाद पेस्ट ही करते हैं। पेस्ट करने के बाद ही हमको ये कंफर्म होगा कि आइटम जो भी है या टेक्स्ट जो है वो कट होके यहाँ पे है। तो कट जो है वो मूव भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि एक जगह पे वो निकलेगा और दूसरी जगह पे वो पेस्ट होगा, जो भी कंटेंट है हमारा, टेक्स्ट है या पैराग्राफ है। कॉपी जो है वो कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है उसको अनदर कॉपी में, डुप्लीकेट में जनरेट करेगी। तो यहाँ पे पूरा स्टेप्स जो लिखेंगे, ये फेयर नोट में आपको एक बार लिखना है। दूसरा वर्क जो है वो कोई भी 10 फॉन्ट फेसेस, तो यहाँ पे जो मेजोरिटी यूज़ होते हैं इस तरह के और वेरी फेमस नेम जो है फॉन्ट के, वही 10 जो है हमने लिस्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फॉन्ट फेसेस अवेलेबल है। लेकिन ये जो सिलेक्टेड जो है अभी लिस्टेड है यहाँ पे आपके सामने, वो मोस्टली जो है वो मेजोरिटी कोई ना कोई जगह पे हर कोई यूज़र जो है उसको यूज़ करता है और अभी भी यूज़ कर रहा है। जैसे कि कैम्ब्रिया है, कैलिबरी है, श्रुति है, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, सेंचुरी, मोनोटाइप कर्सिवा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टाइम्स न्यू रोमन। ये सभी पुराने भी है और ऑफिशियल फॉन्ट्स जिसको बोले थे उस तरह के रिलेटेड ये फॉन्ट स्टाइल्स और फेसेस जो है वो कंटेन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के रिलेटेड पार्ट 2, जिसके अंदर हम इंसर्ट मेनू जो है वो हम देखेंगे, और इंसर्ट के रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो है, जैसे कि क्लिप आर्ट है, शेप, स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर्स कोई है, टेबल हम ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर जो है, पेज के नंबर कैसे देंगे, वो सभी ऑप्शन हम देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।